स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो एडवर्टाइजमेंट का पहला भाग आपको हमने बताया था। आज एडवर्टाइजमेंट की सामान्य जानकारी उस दिन आपको बताई थी, एडवर्टाइजमेंट का प्रकार बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी कि जब किसी सामान को बेचना हो, उसका बारे में उसकी क्वालिटीज़ बतानी हो, किसी का प्रचार प्रसार करना हो, तो तमाम प्रकार के विज्ञापन टीवी, मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी वगैरह में दिया जाता है, अपने कोर्सेज में जो प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दिए जाते हैं केवल प्रिंट मीडिया वाले हैं। यानी किसी सामान को बेचना हो या उसका प्रचार करना हो या कोई सामान खो गया हो उसको ढूंढने के लिए अखबार में जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो अपने कोर्स के अंदर हैं। 4 नंबर का ही टॉपिक आता है, 40 से 50 शब्दों में अपन को लिखना होता है। इसके अलग अलग सेक्शंस हैं एडवर्टाइजमेंट की। पहला जो सेक्शन है वो था मैट्रीमोनियल, वैवाहिक। मैट्रीमोनियल के बारे में थोड़ा मैं आज आपको इंग्लिश में इसकी जानकारी जो बताई थी पिछले वीडियो में जो बताया गया था उसको रिपीट कर देता हूँ इन इंग्लिश। Advertisement is the topic that carries 4 marks in our examinations. There are 40 to 50 words. You have to write, the word limit is 40 to 50. You have not crossed the limit of the word limit and you have to write only 40 to 50. Not very low, not very high, just like 60 or 70 words. There are many types of the advertisement. First is matrimonial. Matrimonial is only to search bride or bridegroom. If you want to search any suitable bride or bridegroom, we have to write the advertisement in the column of matrimonial. I have told you about many qualities of a bride or a bridegroom. I have told you about 9 characteristics, 9 merits about a girl or a boy. You have to write just like first. You have to told the age of the candidate. Number 2, the caste of the bride or bridegroom. Third number, you have to tell about income. Fourth, height. Fifth characteristics is qualification. Sixth, family background. You can tell about what is the status, what is the job of father and what is his mother. You can tell about grandfather only, but you should not tell very long detail of the family background, just like my father is a professor, my mother is housewife, grandfather is ex-serviceman, grandmother. No, you have to tell only 2 lines about family background. The 6th topic is family background. 7th is early marriage. 8th is no dowry. And 9th is caste no bar. These are 9 characteristics of a candidate if you want to search a good bride or a bridegroom. You can tell the age by 2 types. You can tell directly the age of the candidate. If the girl is 20 years, then you can tell about 20 years old. You can also tell the date of birth of the candidate, just like 24th May, 5th July, 1995, 96, 98. Caste. You can tell the caste of the candidate. If the candidate is girl, then you can tell the Yadav girl, Sharma girl, and you also can add the religion of the candidate with the caste of the candidate, just like Hindu, Yadav Hindu boy, Yadav Hindu, Sharma Hindu boy, because Yadav is caste and Hindu is
religion. Then you can add the religion and caste of the candidate. In this way you can narrate the second characteristics of caste of any candidate: age, caste, and third is income. I have told you about how to write about the candidate's income. You can tell the candidate income monthly, annual, daily. In mathematics you can write the definition of the income just like that. If the candidate earns 10,000, minimum 10,000 rupees and maximum below 1 lakh rupees, then you can tell the candidate's income in 5 figure. If the income of the candidate is above 1 lakh rupees, then you can tell the candidate's income in 6 figure. Then you can narrate the income of any candidate daily, per day, monthly, annual, or in 5 figure, 6 figure, like that. These are the third characteristics of any candidate. Height of any girl or boy you can write in centimeter, in inch, in feet. Just like the height of a girl is 5 foot and 4 inch. The same height can be written just like, because there are 12 inches in a foot, then in 5 foot there are 150 centimeter. 12 inches in a feet and 30 centimeters in a feet. Then we can tell that in 5 foot there are 60 inches and in the same 5 feet there are 150 centimeters, and in 4 inches there are 2.5 centimeters in 1 inch. Then there are 4 inches. So 4 multiply 2.5 is equal to 10. Then there are 10 centimeters in 4 inches. Then there are total 150 plus 10 is equal to 160 centimeters. In this way, if you want to write any candidate's height, you can write 5 foot 4 inch, and the same height can be written just like 160 centimeters. In this way, the height can be written. Some students should write for 5 feet and 4 inch. Some should write 160 centimeters. This is the same height. The difference is only about the measurement, because this is written in centimeters and this is height in foot and inches. So in this way you can write the 4 topic of height. Qualifications. There are different qualifications. The candidate can have the degree of graduate, BBA, BA. The candidate may also the degree have postgraduate, MBBS, BDS. There are so many degrees of educations. So what is your degree? What have you completed? You have to narrate, just like BBA, BA, MA, MSc, MCom. These are different degree you can mention. And the second type, you can write about PG or UG. If you have completed your BSc, then you can write I am UG from Rajasthan University, I am UG from Delhi University. This is the same type. If you have completed your MSc in chemistry, in physics, in biology, botany, zoology, then you can write that I am PG from Delhi University, from BHU. These are the different type how to write about your qualification. Family background. The 6th topic is family background. If you want to write about family background, you can write about your mother, your father, and once more that sentence can be written about your grandfather. Just like that, my mother is housewife, my father is farmer, my father is a doctor, my mother is a government teacher. These are the different posts you can narrate in this topic. Early marriage, no dowry and caste no bar.
These are the three conditions you can follow. You can write the same. You should not change any things in the last three topics: early marriage, no dowry, and caste no mar. In this way, you can complete your matrimonial about a girl or a boy in search of a bridegroom or a bride. तो ये आपको मैंने इंग्लिश में एक बार इसका 5 मिनट आपको दोहराया था कि सारी चीज़ों को आप हिंदी और इंग्लिश में अगर इसको आप दोहराने की कोशिश करेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं ये परमानेंट आपके दिमाग में, इंग्लिश में सब परमानेंट होने की कोशिश करते हैं। इसलिए थोड़ा मैक्सिमम नहीं तो थोड़ा बहुत तो कम से कम हमें इंग्लिश के बारे में भी शब्द 5-7 मिनट सुनने चाहिए, बोलने चाहिए। और याद जब करें तो आप ये इस तरह से याद मत करना कि उसकी उम्र याद करनी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, सीधा इंग्लिश के शब्द याद करो, उसकी हाइट क्या है, इनकम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पर, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट in search of a bride। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आज्ञावाचक है, एक विज्ञापन तैयार कीजिए एक दुल्हन की तलाश में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी आ सकता है, आप अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर तलाश करने के लिए विज्ञापन दीजिए। गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन सर्च ऑफ ए ब्राइडग्रूम फॉर योर सिस्टर। कई बार ये भी आ सकता है कि आपका नाम सुमन है, आपकी सुमन दे दो, कविता दे दो, पूजा दे दो, जो भी एक नाम काल्पनिक मान लिया जाता है। आपकी एज 22 ईयर्स है, अपने लिए एक सुयोग्य वर तलाश करने के लिए एक विज्ञापन 40 शब्दों में तैयार कीजिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, एक विज्ञापन तैयार करो दुल्हन के लिए, अपनी बहन के लिए तैयार कीजिए, या अपने स्वयं को एक दुल्हन मानते हुए एक विज्ञापन अखबार में देना है कि मैं इस तरह की हूँ। अब दो चीज़ें हैं, देखो, जब भी किसी दुल्हन के लिए भाई आप एक विज्ञापन दे रहे हैं इन सर्च ऑफ ए ब्राइड, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको ये आए कि दूल्हा तलाश करो, जब तो वो दे देंगे कि आप अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढिए। अगर वो दुल्हन की तलाश करें तो आपको कहा जाएगा आप अपने बड़े भाई के लिए एक दुल्हन तलाश करने का विज्ञापन दीजिए, और वो आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेट कर लेना कि विज्ञापन दुल्हन का है या दूल्हे का है। अगर दूल्हा तलाश कर रहे हैं इसका मतलब आप दुल्हन वाले हैं, यानी आप अपनी जानकारी दुल्हन के रूप में लिखेंगे। अगर दुल्हन की तलाश कर रहे हो तो आप दूल्हे वाले हैं, तो आप लड़के वाले हैं, लड़के की सारी जानकारी लिखनी पड़ेगी कि लड़का क्या कर रखा है। तो जो तलाश किया जाता है, तलाश क्या कर रहे हो, वो तो तलाश सामने वाला है, वो तो हमें पता ही नहीं क्या कर रखा है। हम तो हमारी कंडीशन लिखेंगे। हाँ, शर्त लिख सकते हैं किस तरह का लड़का हमें चाहिए। तो हमने जो लिखा है, एक ब्राइड की तलाश करनी है। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। इसका मतलब आप दूल्हे वाले हैं। शुरू में हम एक दुल्हन की तलाश करते हैं, अगला जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें एक दूल्हा की तलाश कर लेंगे। पहले दुल्हन फर्स्ट में अपन, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होता है, तो पहले अपन एक दुल्हन की तलाश करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आए तो इनको लिखना कैसे करें, क्या करें, उसका अब अपन आज फाइनल इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये देखो। सबसे पहले अपनी कॉपी में एक आयताकार इस तरह से बॉक्स बनाना। ये एक आयताकार आपका बॉक्स हो गया। ऊपर यहाँ बड़े अक्षरों में यहाँ लिखना ब्राइड, अगर ब्राइड ग्रूम चाहिए तो ब्राइड ग्रूम, और उसको अंडरलाइन कर देना। अब अपना ये आयताकार बॉक्स हो गया, ये विज्ञापन का बॉक्स है, इसी से बाहर अपन लिखेंगे नहीं। ब्राइड अपन तलाश कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ब्राइड। यहाँ देखो क्या लिखेंगे, एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ लोग लिखते हैं वांटेड ए ब्यूटीफुल एंड स्लिम गर्ल। कैसी लड़की चाहिए, एक दुल्हन है, सुशील, हिंदी में लिखते हैं ना सुशील मधुर वाणी की कन्या चाहिए या लड़की चाहिए, इस तरह के शब्द इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में होते हैं वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये लाइन आपको याद करनी है।
अगर लड़का ढूंढ रहे हो तो वांटेड ए हैंडसम बॉय, और लड़की ढूंढ रहे हो तो वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब दिमाग में दोबारा सेट कर रहा हूँ मैं, आप लड़के वाले हैं, आप खुद लड़का क्या कमाता है, लड़के की हाइट लिखनी है, लड़के का माँ बाप क्या करते हैं, लड़का क्या चाहता है, सारी चीज़ें लड़के की लिखेंगे। फॉर, यहाँ हम जोड़ देंगे फॉर 25 ईयर्स ओल्ड सैनी बॉय। देखो अब अपने ये लाइन आपको एक याद करनी है, अब कुछ भी याद नहीं करना। वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब सुंदर लड़की चाहिए, 25 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब लड़के की उम्र 25 साल है, और सैनी बॉय है। चाहे हिंदू सैनी बॉय लिख दो, चाहे सैनी बॉय, कोई लिख देना हिंदू सैनी बॉय, कोई लिख देना सैनी बॉय, कोई यादव बॉय लिख देना, पेपर में नहीं दे रखा है तो कोई शर्मा लिख देना, कोई यादव, कोई क्रिश्चियन, कोई जो चाहे, जो भाई जो भी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आप वही यहाँ पर लिख सकते हो। तो लड़के की हमें उम्र का मालूम पड़ गया कि भाई 25, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें एक सुंदर सुशील कन्या चाहिए, फॉर यानी के लिए, 25 वर्षीय सैनी लड़के के लिए, 25 वर्ष की उसकी उम्र है, सैनी जाति से वो बिलोंग करता है। अब अपन नंबर तीसरा टॉपिक चलेंगे कि उसकी हाइट क्या है। हाइट डायरेक्ट लिख देंगे, हाइट अपन लिखेंगे कि लड़के की सब हाइट है 5 फुट 8 इंच, ऐसे लिख सकते हैं। कोष्टक में हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 दूनी 16 4 20 170 सेंटीमीटर। भाई 5 में तो 150 हो गई और 8 में 20 हो गई, तो 150 और 20 हो गई 170 सेंटीमीटर्स हाइट हो गई। अब क्या बचा, अब पॉइंट याद करते जाओ, 9 पॉइंट लिखनी है अपन को। अब है उसकी इनकम या उसकी क्वालिफिकेशन, कोई क्रम नहीं है, पहले चाहो तो आप इनकम लिख सकते हैं, पहले चाहो तो उसकी हाइट वो लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन। तो अपन लिखेंगे पीजी इन फिजिक्स, फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, फ्रॉम कौन सी यूनिवर्सिटी से बताएं, वो बढ़िया सी यूनिवर्सिटी, देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में आता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की जयपुर जो यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो ये भी टॉप यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग किसी भी, जैसे मैंने लिखा है पीजी इन फिजिक्स, फिजिक्स से PG कर रखा है, फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप, तो ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई। लड़का 25 वर्ष का है, सैनी है, हाइट उसकी 5 फुट 8 इंच है, फिजिक्स से PG कर रखा है। इनकम क्या है, पोस्ट, भाई गवर्नमेंट पोस्टेड है तो अपन लिख देंगे एज ए लेक्चरर, और अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उसकी इनकम लिखेंगे, इनकम तो यहाँ लिख देंगे इनकम 60,000 रुपये अपन लिख देते हैं, 60,000 पर मंथ उसकी इनकम सब 60,000 रुपये महीने की कमाता है। ये अपन ने उसकी इनकम लिख दी, 5 गुण उसके हो गए। 25 ईयर्स का है, सैनी है, हाइट हो गई, फिजिक्स से MSc कर रखा है, इनकम 60,000 रुपये है। अब क्या बचा, अब उसका बचा फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में लिखिए फादर इज, जो भी चाहे, अब फादर क्या है, फार्मर है तो फार्मर लिख दो, लेबरर लिख दो, मैं यहाँ पर फार्मर लिख देता हूँ, नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है, पिताजी किसान हैं, मदर इज ए हाउस वाइफ लेडी, हाउस वाइफ है, गृहिणी है, कोई प्रकार का पैसा वो नहीं कमाती, हाउस वाइफ है। ये मम्मी पापा के बारे में हो गया। और ग्रैंड फादर लिखना चाहो तो लिख दो ग्रैंड पा या ग्रैंड फादर, ग्रैंड पा का मतलब भी ग्रैंड फादर ही होता है। ग्रैंड पा इज ए रिटायर्ड बैंक मैनेजर, मेरे दादाजी रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। जो चाहे जो लिख दो, काल्पनिक है, आप चाहो तो रिटायर्ड आर्मी मैन, सोल्जर, सिपाही, राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड है, जो चाहो जो लिख सकते हैं। ये आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। अब आपको लिखना है कि साहब शादी हम बहुत जल्दी करेंगे, तो अर्ली मैरिज
आपके पास दहेज नहीं है, लड़की वाला लिखेगा जब तो दहेज नहीं है, लेकिन ये लड़का वाला लिख रहा है कि नो डाउरी, इसका मतलब लड़का अच्छा है, पॉजिटिव सोच का है, उसको दहेज नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे नो डाउरी, नो डाउरी, नो डाउरी। और जातीय बंधन की भी अपन लिख देते हैं कि जातीय बंधन नहीं है, कास्ट नो बार, कास्ट नो बार, इसका मतलब है जातीय बंधन नहीं है। लड़का तो सैनी जाति से बिलोंग करता है, लेकिन और किसी जाति की भी लड़की हो तो वो भी हमें कांटेक्ट या संपर्क कर सकती है। तो नो डाउरी, कास्ट नो बार। अब अपन लिखेंगे सूटेबल, सूटेबल गर्ल। लास्ट में एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, जो भी उचित लड़की है कैन सेंड, भेज सकती है, हर फोटो एंड बायोडाटा, अपना बायोडाटा और एक फ़ोटो लड़के का अपन मंगवा लेते हैं। लास्ट में ये लिखेंगे हम कि लड़की अपनी एक फ़ोटो और अपना बायोडाटा भेज सकती है। अब या तो मेल करवा लो या व्हाट्सएप पे मंगवा लो, एट व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर। और व्हाट्सएप नंबर में अपने अपने नंबर डाल दो और आप इंतज़ार करो, ज़रूर कोई लड़की आपको तुरंत बहुत जल्दी इस तरह का अपना रिज्यूम और फ़ोटो भेज देगी। फिर उसके बाद में जब वो भेजेगी तो भेजने के बाद आप चेक कर लेना। बायोडाटा का मतलब है लड़की अपनी सारी डिटेल भेजेगी इसमें कि भाई मैं ये पढ़ी लिखी हूँ, मेरी ये हाइट है, मैं ये करती हूँ। फिर दोनों में जो भी, अब विज्ञापन का काम तो इतना ही है, विज्ञापन का काम है दो व्यक्तियों को मिलाना। अब आगे क्या होगा वो अपनी प्रक्रिया आप चलाओ। तो कुल मिला करके लड़की, अब इसको पूरे को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। देखो 40-50 शब्दों में हो गया, 4 नंबर का टॉपिक तैयार है। वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 25 ईयर्स ओल्ड सनी बॉय, हाइट 5 फुट 8 इंच है, 170 सेंटीमीटर कह सकते हैं, पीजी इन फिजिक्स। पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, यानी 17वीं पढ़ी लिखी है फिजिक्स से, फ्रॉम BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इनकम 60,000 रुपये पर महीने के कमाता है लड़का। पिताजी उसके किसान हैं, मदर उसकी हाउस वाइफ है, ग्रैंडफादर उसके रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। अर्ली मैरिज करेगा, नो डाउरी, दहेज नहीं लेगा, कास्ट नो बार, जातीय बंधन नहीं है। सूटेबल गर्ल सेंड, लड़की जो उचित है वो भेज सकती है अपनी एक फ़ोटो और एक बायोडाटा इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस तरह से एक दुल्हन, एक ब्राइड तलाश करने का विज्ञापन बहुत शानदार हमारे पास बन करके तैयार है। इसको आपको साफ साफ लिखना है और याद करना है। इसको रफ कॉपी में लिख करके याद करना। फेयर के लिए अपना अलग से एक डाल देंगे उसमें PDF फाइल, जिसमें आपको साफ साफ लिखना है। फिलहाल इसको आप रफ के अंदर लिख करके और पूरे को सेम बढ़िया तैयार कर लेना। इससे मिलता जुलता ही अगर आप लड़का ढूंढेंगे तो लड़का में क्या है, यहाँ लिख रहे हैं कि वांटेड ब्यूटीफुल गर्ल, उसमें कर देंगे वांटेड हैंडसम बॉय। बाकी तो आगे 1-2 सब चेंज होते हैं। तो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको आज ढंग से कॉपी में, रफ कॉपी में लिख करके शानदार ढंग से याद करेंगे। और ये टॉपिक अपना 4 नंबर का हर साल लगभग 2 साल, पिछले 4 साल में उठाकर देखें तो ये कभी ब्राइड ग्रूम का ज़्यादा आता है और ब्राइड ग्रूम का ही हमने लिखा है। तो आप इसको साफ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको साफ साफ ढंग से, आज थोड़ा मार्कर ये रेड कलर का था तो थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा है, इसको आप साफ साफ उतार करके याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।